Assalamu alaikum students. Today we are starting our chapter number 8, that is on page number 50, and this chapter is, the name of the chapter is all about wind. Moving air is called wind. It moves at different speed and blow from different directions. Usually the wind blows straight in one direction, but at time it moves in a circle like a spinning top. On a very large scale, such winds become cyclones. They can travel thousands of kilometers and can cause destructions. Now what we have just read, that the movement of air from one place to another is called wind. Winds can move any direction. It can blow from anywhere, any side. But usually the wind blows straight in one direction. But sometime the air moves in a circle, spinning like a top. And that movement is very dangerous. It can become a cyclone, and cyclone can travel thousands of kilometers and can cause great destruction. हवा का एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना विंड कहलाता है. विंड किसी भी तरफ, किसी भी डायरेक्शन और किसी भी स्पीड में, किसी भी रुख में, किसी भी रफ्तार से हरकत कर सकती है. आमतौर पर ये सीधी सीधी चलती है, लेकिन कभी कभी ये गोल गोल भी चलना शुरू हो जाती है, और जब ये गोल गोल घूमती है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है और इसे साइक्लोन का नाम दिया जाता है. साइक्लोन एक जगह से कई हज़ारों किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. Now we come to the second paragraph, that is starting why winds blow. दूसरा पैराग्राफ अब शुरू करते हैं. इसमें क्या है कि हवा क्यों चलती है. Winds blow because of uneven heating of the earth's surface by the sun rays. When a surface on land or water absorbs sunlight, it becomes hot. The air near the surface also becomes hot and rises, leaving a gap below. Cooler winds from surroundings area rush in to fill the gap. Such a gap made on a large scale is called a low pressure area. Now how the wind blow, हवा कैसे चलती है. Wind blow because of uneven heating of earth surface. And how the earth surface heats? It heats from the sunlight. When the sun rays strikes the earth, it's heat up. And what's happened then? The surface absorbs the heat, and on land and water both it becomes hot. And when it becomes hot, the air which is near it becomes also hot. And when it becomes hot, it becomes lighter. And when it becomes lighter, it goes straight up in the sky. And when this gaps happen, the air which are around us and cool, they come fastly to fill the gap. So in this way, that such a gap was filled by the cold air and called a low pressure area. So that gap, the place where the gap is called low pressure area. हवा तेज़ किस तरह चलना शुरू हो जाती है, या उसकी स्पीड किस तरह होती है, उसकी रफ्तार कैसे बढ़ती है. होता क्या है कि सूरज
कि गर्मी जब ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन गर्म हो जाती है। अगर समुंदर पे या दरिया पे पड़ती है तो पानी गर्म होने लग जाता है ऊपर से। फिर क्या होता है कि जब वो जगह गर्म होती है तो उसके आसपास की हवा भी गर्म हो जाती है। जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है और तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो क्योंकि हर जगह हवा मौजूद है तो आसपास की जो हवा होती है वो तेज़ी से इस खाली जगह को भरने की कोशिश करती है और वो स्पीड से इस खाली जगह पे इस गैप में आती है। इस तरह से एक तेज़ रफ्तार हवा जो है वो हमें महसूस होती है। बिल्कुल इसको आसानी से समझने की बात ऐसे है जैसे एक बाल्टी में आप पानी भर लें और उसमें से एक मग पानी निकाल लें। आपने देखा जिस जगह से आपने एक मग पानी निकाला था वहाँ पर कोई आपको गड्ढा नज़र आया? नहीं ना, आसपास के पानी ने तेज़ी से वो जगह भर दी। बिल्कुल इसी तरह से हवा जब ऊपर जाती है तो उस खाली जगह को आसपास की हवा तेज़ी से भरती है और वो इतनी तेज़ी से भरती है कि उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है और तेज़ हवा चलती हुई हमें महसूस होती है। Here we have a figure also which is explaining wind circulation around the globe. यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है जो हमें साथ साथ ये भी बता रही है कि हवा किस किस डायरेक्शन में कैसे चल रही है। आपने देखा इक्वेटर पे लो प्रेशर है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है और उसके बाद वहाँ से हवा किस तरह अपनी अपनी इधर उधर की डायरेक्शन में जा रही है। सब ट्रॉपिक बेल्ट में किस तरह से हवा मूव कर रही है और फिर क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है बहुत ठंड है इसलिए वहाँ पे हाई प्रेशर और हवा वहाँ से लो प्रेशर एरिया की तरफ आ रही है। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 51 की तरफ। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर पेज नंबर 51। Now the first heading is trade winds. Trade wind blow steadily towards the equator. In olden days when sailing was the only method of marine transport, these winds helped the sailor to travel in the same direction and the sailor named these trade winds. Now why we call a wind trade wind? आखिर हम हवा को ट्रेड विंड का नाम क्यों दिया गया? असल में हुआ क्या कि ट्रेड विंड्स ट्रैवल टुवर्ड्स द इक्वेटर। ट्रेड विंड्स जो है ना वो इक्वेटर की तरफ जाती है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब पानी के जहाज़ के ज़रिए ही सारा माल, तिजारती माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था तो ये हवा जो है क्योंकि एक ही से चलती है तो इसलिए ये पानी का जहाज़ चलाने वालों सेलर्स को उनको बहुत मदद करती थी। तो चुनाचा सेलर्स ने इनका नाम ट्रेड विंड्स रख दिया क्योंकि ये तिजारती सामान लेकर समुंदर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इस हवा से मदद लेते थे। चुनाचा इसका नाम ही ट्रेड विंड्स पड़ गया। नाउ द सेकेंड हेडिंग है सरफेस विंड। Surface wind are the normal everyday movement of air that we are all familiar with. These winds can range from gentle breeze to gale up to 160 km per hour. In many areas of the world, surface winds move in the same direction all through the year. On the subcontinent, which is in the monsoon region, the season determines the direction of the wind. Now the second wind is called surface wind. Surface wind also name of a wind. Surface winds are the normal everyday movement of the air. Means the air which we feels daily and we are very familiar with it. Now the thing is, sometimes the wind blows very gentle and sometimes become very dangerous, which is called gale, and its speed is 160 km per hour.
which is very very fast. So in many areas of the world, surface winds moves in the same direction through all the year. But on the subcontinent, what's happened? In the monsoon region, the season determines the direction of the wind. Means its direction changes in the subcontinent and then depends on the season. सतही हवा यानी सरफेस विंड, हम रोज़मर्रा जिस हवा से हमारा सामना होता है, जिससे वास्ता पड़ता है, वो सरफेस विंड कहलाती है। हम सब इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वैसे तो ये बहुत आराम से स्लो चलती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार भी हो जाती है, यानी 160 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड हो जाती है जब ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है। और उस वक्त ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। जहाँ जहाँ जाती है वहाँ इससे नुकसान होता है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस विंड की डायरेक्शन जो है ना, उसका रुख इस बात पर डिपेंड करता है कि मानसून रीजन में इसके रुख तब्दील हो जाता है। चुनाचा अब सीज़न के हिसाब से ही अपना रुख बदल लेती है, सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द upper atmosphere wind. What is upper atmosphere wind? These winds blow at the height of 1000 meter above the earth's surface. They are also called jet stream. Aeroplane flies at this height are aided or obstructed by jet stream. These winds can blow at a speed of 350 km per hour. Now there is also another wind that is called upper atmosphere wind. As its name is showing that it is up in the sky. These winds blow at the height of 10,000 meter above the earth's surface. अपर एटमॉस्फेयर विंड जो है ना, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये ऊपर कहीं जाकर फ़िज़ा में मौजूद होगी। ये 10,000 किलोमीटर ऊपर है हमारी ज़मीन से। इसको हम लोग जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेट स्ट्रीम एयर। वाई? बिकॉज एरोप्लेन फ्लाइज एट द हाइट आर एडेड और एब्स्ट्रक्टेड बाय द जेट स्ट्रीम। तो ये जब हवाई जहाज़ उड़ते हैं ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर, तो वो इस हवा को महसूस करते हैं। दीज विंड्स कैन ब्लो एट स्पीड ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर और मोर। ये हवा 350 किलोमीटर फी आवर यानी 350 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है, और इससे ज़्यादा रफ्तार से भी चल रही होती है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। तो ये कुछ अलग अलग किस्म की हवाएं थी जिनके बारे में हमने पढ़ा, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, विंड्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा, विंड क्या होती है, ये हमने समझा कि हवा कहते किसको हैं, हवा किस तरह चलती है, उसकी रफ़्तार कैसे कम ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे फिर और ज़्यादा इसके बारे में मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 8 ऑल अबाउट विंड्स को एक्सप्लेन किया है। मज़ीद जो कुछ रहता है पेज नंबर 51 तक हम लोग पहुँचे, आगे फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग इन उर्दू इंग्लिश बोथ। थैंक यू वेरी मच।